Grandpa's Tree by Ruth Harrigan. Eric stared up at the oak tree in his front yard. His parents told him that his grandfather had planted it 30 years ago. Eric always imagined what that looked like. Thin Grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with a sapling in it, gently parting the earth for what would one day be the massive tree. Knowing Grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. Last night, when his mother said they were cutting down the tree, Eric tried to tell his parents that the tree was planted as a sign of Grandpa's love. His mother began to cry. She pointed at Eric's wheelchair and said, "That tree is coming down tomorrow," and ran from the room. Eric's dad just cleared his throat and shrugged. "Dad," Eric said, "it's not the tree's fault or Grandpa's that I fell out of it. Cutting the tree down will make me feel worse." "Your mother just doesn't want to have to look at that tree. Try to understand that," his father said. Eric shook his head and wheeled out of the dining room. He didn't understand what good it would do to cut down the tree now. Cutting down the tree wouldn't change that he fell from the tree, but it would be one less sign of having Grandpa around. And Eric didn't want that. Suddenly, he knew what he had to do. He rolled over to the bottom of the tree in his wheelchair and looked up to find the place he usually started his climb. It was still there. A peg in the tree he hammered in a year ago when he started climbing the tree when he missed Grandpa. But now, instead of it being in a place where he could jump up, it was out of his reach. Eric realized he'd need a new peg. A half hour later, he'd hammered in a few more pegs at lower heights. As he did this, he planned his route up the tree, realizing that he could climb most of the way up using his arms. The chin-ups he'd been doing to strengthen his arms would come in handy today. He checked his watch. The tree cutters were coming in a half hour. He had to hurry. Tossing the hammer to the ground, Eric reached for the first peg. He felt his body lift out of the wheelchair as he pulled himself up the tree. And then, miraculously, he was climbing again. When he reached the pegs he used to use, his body went into automatic, one hand reaching over the other, until he pulled himself up most of the way. He stopped and steadied himself. Then he leaned his back against the trunk and lifted first his left, then his right leg up and over to the correct position to sit. "It's this big oak tree over here," he heard his mother saying about 15 minutes later. Eric saw her walk beneath him, followed by two men wearing orange t-shirts. One of them looked over at the wheelchair, then peered up into the tree and saw Eric. Eric waved at him. "Ma'am, what do you want us to do about him?" he asked, pointing up at Eric. Eric's mother looked up, then stepped back. "Eric, how did you get up there? Help him down." The tree cutter scratched his head and grinned. "Ma'am, but he's a pretty good climber. I don't know if I can get him down from there." "You must have some equipment or something. Just get him down. He'll fall." "Eric, what's the matter with you?" "Nothing, Mom," Eric said. "In fact, I'm feeling so good." "I don't know what you're up to, Eric, but that tree is coming down today." His mother turned to the two men. "Go get your equipment. He'll be down by the time you get back." The two men walked off toward their truck. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother, who continued to remain planted in one spot, staring up at him. "Mom, I'm not coming down." "You most certainly are. You got yourself up there, so get down. Now." "No, I want you to listen to me, Mom, please." And then Eric added, "Don't you see that this tree is a gift from Grandpa? It reminds me of him every day. That's why I loved to climb it, and I want to still climb it. Please, Mom, don't take that away from me." His mother shook her head. "But Eric, if only he didn't plant it, you wouldn't have fallen. You wouldn't need this wheelchair," she said.
Mom, Eric said. cutting down the tree is not the right thing to do. It's like saying, I can't do what I used to love to do. And I can, Mom. More than you think. He saw the two men coming back to the tree carrying saws. His mother shook her head. Then she said quietly, I don't know how you did it, Eric. How did you get up there? He pointed down at the base of the tree. I just lowered the pegs, Mom. That's all. It's safe, honest. My arms are really strong, and I think it's good exercise so I can push the chair better. Mother reached over and touched the lowest peg on the tree, then nodded and turned to the men. All right, She said. just send us a bill for your time. The tree isn't coming down. She waited a few moments, then placed her left foot on the lowest peg. Then, hesitating, she put her right foot on the next peg. Slowly she climbed up, looking at Eric as she did until she got to the branch. Then she sat on the branch, smiling at him. See, Mom, it's not so scary, is it? Eric asked. Truthfully, I'm terrified. She said, laughingly. She looked down at the house and yard and grinned. But I should have come up here a while ago. It is a great view, isn't it? It's a fantastic view, Eric said. Grandpa would have loved what you did today. Mother said. Eric nodded. Then he reached for his mother's hand, and there they sat in the tree together. रुथ हेरिकेन ने लिखी हुई दादाजी ने लगाया वाला पेड़, ये कहानी आप आज पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए देखते हैं दादाजी ने लगाया वाला पेड़, दादाजी का पेड़। कभी कभी किसी को रहता है ना, तो ये जो इरिक है, ये इरिक जो दादाजी ने लगाया वाला पेड़ उसके सामने बैठ के उससे बातें कर रहा है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो इस पेड़ से बातें करता है तो जैसे कि वो अपने दादाजी से बातें करता है। और ये हमेशा इमेजिन करता रहता था कि उसके दुबले पतले जो दादाजी है कैसे सीड्स को दबाते थे, फिर उसको पानी देते थे, फिर ऐसे पेड़ बन जाता था। और वो खुद इतने एनर्जेटिक थे कि ये उनका डेली का काम होता था। बहुत ही नीटली, बहुत ही परफेक्टली ये सब काम करते थे। तो ये जो लड़का एक दिन ऐसे ही पेड़ पे चढ़ते चढ़ते ये गिर गया है और गिरने के बाद ये चलना भूल गया है, इसीलिए ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मम्मी है, मम्मी पापा से बोल रही है कि वो पेड़ है ना, ये पेड़ दिन भर ये पेड़ के सामने खड़ा रहता है, मैंने देख सकती है इसको ऐसी हालत में, तो ये काट डालना है। मम्मी इरिक जो है, ये इरिक उसको मना करता है तो मम्मी बोलती है उसी पेड़ के कारण तुम गिरे थे और गिरने के कारण तुम अभी जिंदगी में कभी चल नहीं सकोगे। पापा बेचारे हेल्पलेस है क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि यही है, एक्चुअली ये उनके ही पिताजी ने लगाया वाला पेड़ है। प्यार तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा भी तो है। तो पापा की तरफ देख के लड़का बोलता है कटिंग, ये पेड़ काटने के बाद मैं चलने लगाऊंगा, ऐसे भी नहीं है ना पापा। तो ये मम्मी क्यों समझ नहीं रही है। पापा बोलते हैं मैं हेल्पलेस हूँ बेटा, मैं भी समझ सकता हूँ लेकिन मैं अब ऑलरेडी तुम्हारे पैर खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। तो इरिक जो है ये बहुत बेचारा इमोशनल सेंटिमेंटल चाइल्ड है। ये ऐसे समझता है जैसे वो पेड़ को हक करता है तो जैसे कि उसके ग्रैंडफादर उसके आजू बाजू में है, ऐसे उसे लगता है। और ऐसे ही होना चाहिए ना, सभी पेड़ जो है ना ये ऑक्सीजन देते, भाई माँ से भी बढ़कर ये होते। माँ तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को दूध पिलाती है, एक पेड़ जो है ना ये आदमी को जिंदगी भर ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ है, अभी क्या करूँ ये सोचते ही रहता है। ये बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाऊंगा लेकिन मैं इसको काटने नहीं दूंगा। और वो वहाँ पे आके अच्छे से देखता है कि वो जब उसको चढ़ता था तो चढ़ते समय उस क्या क्या करता था। वो जो आप देख सकते हैं उसने एक हथौड़ा लाया, हथौड़ा से एक लकड़ी का जो बड़ा सा स्ट्रिप था वो वहाँ पे लगा दिया ताकि वो उस हाइट से उसको आराम से चढ़ सके। एक्चुअली उसको चलना भी इम्पॉसिबल था लेकिन यहाँ पे देखिए उसकी इच्छा क्या है कि वो चढ़ना चाहता है। और तभी उसने क्या किया, वो जो व्हील चेयर है वो व्हील चेयर को एकदम नज़दीक लाके रख देता है, हथौड़े को फेंक देता है और जो उसने अटकाया वाला हुक है उसको पकड़ के, अभी वो उसके पैर खराब हो गए लेकिन उसके हाथ में तो ताकत है ना, तो वो हाथों की मदद से ऊपर 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 चढ़ने लग जाता है। उसने ना इतने सारे हुक लगा के रखे कि आराम से कोई भी उसको हुक को पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है। अगर आपने हिल क्लाइंबिंग को देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और वो बड़ी सी डाली पे चढ़कर बैठ जाता है और अपने आप को इतना सेफ तो कर लेता है कि वो नीचे गिरेगा नहीं करके। लास्ट टाइम मैं ऐसे मिस्टेक की थी, इसी के कारण उसको
उसके पैर खोने पड़े थे। और ये इतना बड़ा बिग ओक ट्री है पापा जी दादाजी ने लगाया वाला। जो मम्मी है ना, ये ऑरेंज कलर के टी शर्ट पहने वाले दो आदमी जो इस पेड़ को काटने वाले हैं वो आते हैं, मम्मी उनको लेके आती है। तो एरिक जो है ये पेड़ पे बैठा हुआ है और उनको हाय बोलता है। तो वो जो है आदमी लोग उनको बोलते हैं कि उसका क्या करना है। मम्मी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, एरिक वहां पे तुम कैसे चढ़े हो, चलो नीचे आ जाओ। एक काम करती हूँ, रुको रुको रुको। वो तो कटर को बोलती है कि तुम ही जाके उसको नीचे लेके आओ। तो वो बोलते हैं अगर वो इतना ऊपर जा सकता है तो अब इतने ऊपर गए हुए बच्चे को नीचे लाना इम्पॉसिबल है। उसे खुद ही बोली है वो नीचे आ सकता है करके। मम्मी उसे बोलती है तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल, यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं नीचे नहीं आऊँगा, नीचे आऊँगा तो तू पेड़ काट डालेगी। ऐसे मम्मी को बताता है। मम्मी दोनों आदमियों की तरफ बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो, जाओ इसको तोड़ने के लिए जो सामान होता है वो सब लेके आओ। देखते हैं एक नीचे आ जाएगा। मम्मी उस बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रही है, प्यार से भी देख रही है और बोलती है बेटा तुम चढ़े कैसे। बेटा बोलता है मम्मी पहले तुम उनको ऑर्डर दे दो, मत काटो इस पेड़ को मम्मा, ये ग्रैंडफादर की लास्ट निशानी है। तो वो इमोशनल हो जाती है और बोलती है नहीं 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 नहीं, इसे कटना ही है, आज तो ये कट के रहेगा। हाँ, एरिक बेचारा क्या करेगा, वो वहीं पे बैठा हुआ है और बोलता है जब तक तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं करोगी मैं नीचे नहीं आऊंगा। माँ अपना हेड हिलाती है और बोलती है कि अरे तुम गिर जाओगे बेटा, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था और तुम्हें पता था ना व्हील चेयर तुमको क्यों मिली है, तुम जन्म से ऐसे नहीं हो। तो एक बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ, मेरे पैर चले गए हैं, इसलिए तुम इस पेड़ को सजा दोगी, ग्रैंडफादर की लास्ट निशानी को तोड़ दोगी। और ये जो दो आदमी हैं ये दोनों के दोनों इक्विपमेंट लेके आ जाते हैं तोड़ने के लिए, बड़े बड़े हथौड़े जो होते हैं वो लेके आ जाते हैं। मम्मी बार बार रिक्वेस्ट करती है एरिक से बेटा नीचे आ जाओगी, गिर जाएगा, लग जाएगा, सुनो। और बेटा बोलता है मम्मी मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, मैं दादाजी से बहुत प्यार करता था और मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं नीचे और गिर के मर नहीं जाता, नहीं तो इस देखो मामा तुम एक बार। मम्मी तभी रोक देती है और उनको बोलती है कि अच्छा ठीक है, देखो मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, तुमने पेड़ तो नहीं काटा लेकिन तुम्हारे टाइम वेस्ट करने के लिए जो पैसा बनता है मैं दे दूंगी, बिल बना के रख दो वहाँ पे। और तभी वो खुद ही पेड़ को चढ़ने की कोशिश करती है। हाँ वो बहुत डरी होती है लेकिन उसको बहुत मजा आता है ऊपर जाने में और वो अपने बेटे के पास जाके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं और वो लड़का मम्मी से पूछता है मम्मी बहुत डरावना लग रहा है क्या, और क्या अच्छा लग रहा है। मम्मी बोल रही अच्छा तो लग रहा है लेकिन जितना अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा मुझे डर लग रहा है नीचे गिरूंगी तो, ये मत सोचो मम्मी। फिर मम्मी बोलती है अरे वाह यहाँ ऊपर हाइटेड प्लेस में से तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है, लोग दिखते हैं, सब घर दिखते हैं, वाह ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। तो ये बता दो दादाजी ने इसीलिए तो ये पेड़ लगाया था मम्मा। तो मैंने भी ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आप लोगों को समझ में आए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। प्लीज़ देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको पसंद आएंगे और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।